A very beautiful morning, all of you. Today we'll start a new poem. It's chapter number 16, Geography lesson. So here ponder, have you ever wondered why do people leave the comfort of their homes and travel all across the globe? क्यों लोग घूमने जाते हैं, है ना? एक शांति से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते तो why should people leave their home and go abroad? Learning could be one of the reasons. कुछ नया एक्सप्लोर, कुछ नया एक्सपीरियंस के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए लोग जाते हैं. Most of us want to experience something unfamiliar and live with the new skill. Okay, new skill or knowledge. Okay, that is the reason why should we leave the home. If you could take a trip anywhere, which skill would you like to acquire and think about it? Just think about it, है ना? अगर हम कोई प्लेस के अंदर घूमने जाते हैं तो कौन सी स्किल हम डेवलप करना चाहेंगे? So we learn the most from our teachers. What do teachers do and fill in these clouds? So now here, okay, teacher is a compass that activates the magnets of curiosity, knowledge and wisdom in the pupils. Okay, now have you ever dreamed about traveling to a faraway land? Where would you like to go? आपको कहाँ जाना पसंद है? So now let's see about the poet. Okay, it is a Brent Patton. Okay, Brent Patton was born in 1946 in Liverpool. Patton is also well known for his best-selling poetry collection for the children, most famously Gargling with Jelly. His collection of children and adults, the Blue and Green Ark, the alphabet for planet Earth, won a Columnary Award. He has also written a novel for children, Mr. Moon's Last Case, which won the award from the Mystery Writers of American Grammar. So here the poet is telling about his experience with the teacher. Okay, his history teacher or geographical teacher always tell them, वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताता था कि मैं ये स्कूल छोड़ के चला जाऊंगा और दुनिया की जितनी सारी प्लेसेस है उसको एक्सप्लोर करूंगा, वहाँ पे जाऊंगा. ओके, टीचर जा नहीं सका, उसकी डेथ हो जाती है, बट उसके सिखाए हुए लेसन पोइट कभी नहीं भूलता है. तो एक पोएम के तरीके से वो लिखता है अपने टीचर के बारे में, है ना? जियोग्राफी जो पढ़ाता था टीचर, उसके बारे में वो लिखता है इस पोएम के अंदर, क्योंकि उसने जो पोएम अलग अलग सारी चीज़ों के बारे में, उसने हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया होगा उस सारी जगहों पे, तो टीचर जो हमारा ब्रेन पैटर्न है वो कभी नहीं भूल सका उन चीज़ों को. तो ही राइट अ पोएम फॉर हिज टीचर. सो हियर our teacher told us one day he would leave and sail across a warm blue sea to places he had only known from maps and all his life had longed to be. Okay, so here the poet tell us उसके जो टीचर थे, जब पोएट चाइल्डहुड था, वो पोएट पढ़ रहा था, ब्रेन पैटर्न पढ़ रहे थे, तब उसके टीचर ये हमेशा एक बात बोल रहे थे कि ये स्कूल छोड़ के वो चला जाएगा and sail across the warm blue sea. Okay, पूरी दुनिया घूमेगा. To places he had only known from maps, जो places उसने सिर्फ मैप में ही देखी है वो सारे places को, and all his life had longed to be, पूरी जिंदगी वो देखेगा, उसकी एक ख्वाहिश थी कि दुनिया को एक्सप्लोर करे, है ना? Now house he lived in was narrow and grey. Narrow means छोटा और grey means it's means पुराना और dull, है ना? Not it is here not for the color, but उसका घर जो था वो
छोटा था और पूरा ना कर। But in his mind's eye he could see, but वो अपनी imagination power से वो देख सकते थे सारी चीजें, है ना। उसका घर जो था वो was narrow and grey, but in his mind's eyes he could see sweet scent jasmine clinging to the walls। वो अपनी imagination आँख से वो देख सकते थे कि जो walls थी वो जैस्मिन की खुशबू clinging to the wall, जैस्मिन खुशबू आ रही, and green leaves burning on the orange tree, और orange tree के ऊपर green leaves। He spoke of the lands he longed to visit, where it was never dry or cold। वो हमेशा जो places के बारे में जहाँ बताना चाहता था कि जब भी वो विजिट करे तो वैसी प्लेसेस जहाँ पे ज़्यादा ठंडी ना हो और ड्राई मीन्स जहाँ पे ऐसा वीरान जगह ना हो, है ना, जहाँ पे बहुत सारे सिटीज हो, प्लेसेस हो, घूमने के लायक ऐसी चीज़ें हो। He couldn't understand why he never left। यहाँ पे I couldn't understand। So I means the poet pattern। Pattern said I couldn't understand why he couldn't left। He never left। I couldn't understand why he never left। लेकिन मुझे पता नहीं चला कि वो उसने हमारे टीचर ने ये स्कूल क्यों नहीं छोड़ा। And shook off the school's strange hold। And shook off the strange hold means स्कूल की अथॉरिटी जो होती है वो टीचर्स के ऊपर कंट्रोल होता है उन लोगों का, है ना। So उसने स्कूल अथॉरिटी क्यों नहीं छोड़ी। Then halfway through his final term, सभी टीचर्स का एक रिटायरमेंट टाइम है, सभी का रिटायरमेंट टाइम होता है। तो जब फाइनल टर्म था, जब उसके रिटायर होने वाले थे, तब फाइनल टर्म के पहले he took leave and never returned। तब वो बीमार हो गए और कभी भी वापस ना आए, मतलब कि उन लोग उसकी डेथ हो जाती है। And he never got to that place on the map। और मैप जो प्लेस था हमें बार बार वो बता रहे थे, वहाँ पे वो कभी नहीं जा पाए। He on the map where the green leaves of the orange trees burn, the maps were drawn on the where the green leaves of the orange trees burn। जहाँ पे हमें बताते थे जहाँ पे green leaves वो orange trees burn, ओके, वहाँ पे वो कभी नहीं जा पाए। The maps were drawn on the classroom wall, okay। His name was forgotten, it faded away। मीन्स कि जो टीचर जाने के बाद नए कोई टीचर आए होंगे तो उसके बारे में लिखा गया कि क्लासरूम के ऊपर फिर से ज्योग्राफी का जो क्लास था उसके ऊपर फिर से मैप्स वगैरह, ग्लोब मैप्स वगैरह रख दिए गए और उसका नाम भी भूल गए सब, इट फैडेड अवे। और वो मतलब कि हमेशा के लिए फॉरवर्ड हो गया वो टीचर। But a lesson he never knew he taught is with me to this day। लेकिन टीचर ने जो लेसन सिखाए थे वो मुझे आज भी अभी भी याद है। I travel to where the green leaves burn। मैं ट्रैवल करूँगा वैसी जगह पे green leaves burn। To where the ocean's glass clear and blue। जहाँ पे ओशन इतना ब्लू हो, जहाँ पे कोई ऐसा मतलब कि ग्रीन लीव्स बर्न इट मीन्स जहाँ पे इतनी ठंडी ना हो, ना फॉरेन कंट्रीज के अंदर वो ठंडी के लिए परेशान हो जाए, 6 महीने ठंडी होती है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, उन लोगों को सन बाथ लेनी पड़ती है, ना, शरीर अच्छा, बॉडी अच्छी रखने के लिए सन बाथ लेनी पड़ती है। दैट इज वाई ग्रीन लीव्स बर्न्स वैसी जगह पे जहाँ पे इतनी ठंडी ना हो। और टू वेयर द ओशन ग्लास क्लियर, ऐसा ओशन क्लियर ओशन हो। टू ऑल दोज प्लेस माय टीचर टॉट मी टू लव। और ऐसी सारी जगह पे जहाँ पे टीचर ने मुझे सिखाया है, बट विच ही नेवर न्यू, जहाँ पे वो जाना चाहते थे लेकिन वो जा नहीं पाए, वैसी जगह पे मैं जाऊँगा। So it's one type of tribute to his teacher,
है ना, एक पोएम के द्वारा अपने टीचर को दी गई श्रद्धांजलि जैसा ही है ये तो। लेकिन व्हाट टीचर वांट्स टू डू इन हिज लाइफ ही नेवर डिड, और वो कर नहीं सका टीचर्स। तो पोएट को भी ये ऐसा लगा कि उसने भी सारे टीचर्स नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, सीखना चाहिए, कुछ नया एक्सपीरियंस लेना चाहिए ज़िंदगी में, तो वो कर नहीं पाया, और इसलिए उसने ऐसी पोएम के ज़रिए अपने टीचर को एक ट्रिब्यूट दिया, है ना। जो पोएट हम भी कहते हैं ना, पापा जो नहीं कर सके वो हम करेंगे, वैसा टीचर्स का भी यही होता है, जो टीचर्स नहीं कर सके, जो टीचर्स हमें कहते थे वो हम करके दिखाएंगे, है ना। सो वैसा ही एक ट्रिब्यूट पैटर्न ने हमें बताया है। सो आई होप यू लाइक इट, एंड here is the no difficult spellings, so no need to write the spellings and word meanings, but you have to write down the rhyming pairs of this poem. Okay, it is enough for today. Read the poem at least 2 times. Thank you very much and have a good day.